In today's lecture, we are going to discuss reproduction in flowering plants. Since you might be knowing that flowering plants are those which produce flowers, and there is only one category of plants in this world which produces flowers, and those are called angiosperms. Normally, we consider that angiosperms are the most advanced, and therefore they have the most advanced reproductive methods as well. So in this chapter, we will be just discussing the methods of the sexual reproduction in flowering plant, not the asexual which we have studied in the previous chapter. So here we are going to study reproduction in flowering plants, that is angiosperm. So before getting into the process of reproduction, we first have to study that what are the reproductive structures which participate in reproduction. For example, in any species of any plant or animal or any other organism, if you study reproduction, you will first have to study that those reproductive structures, the reproductive organs that take part in reproduction. So in the case of plant, it is the flowers which are the reproductive structures. Normally, in terms of sexual reproduction, the plants will have flowers for their reproductive event, and for asexual reproduction, plants have various methods like vegetative propagation, in which you know that the stems are used, or roots are used, or leaves are used for reproduction. So here we are going to study the reproductive structures for sexual reproduction, not asexual. So the first and most important part of sexual reproduction in plants is flower. So flower is just like a reproductive organ that humans have, like testes and ovary. So I am talking about it in analogy, not in terms of as a whole. This is considered to be the main reproductive event, or reproductive structure. So we'll first have to study parts of a flower. तो यहाँ पर फ्लावर्स के पार्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं, और ये आउटसाइड से इनसाइड की ओर पढ़ेंगे, यानी कि जो सबसे बाहर वाला लेयर होगा, द आउटरमोस्ट लेयर वुड बी कैलिक्स, एंड देन द इनरमोस्ट, दैट इज द गाइनीशियम. सो वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. सो द फर्स्ट पार्ट एंड द आउटरमोस्ट इज कैलिक्स, द अदर इज कोरोला, द थर्ड वन इज एंड्रोशियम, and the fourth is gynoecium. Instead of parts of a flower, I could also have written holes of a flower. So here we are going to say holes of a flower. So holes are basically layer, that is the calyx is the outermost layer, then the corolla, then the adventium, and then the gynoecium. Now these four structures are not individual structures. These are composed of smaller parts, and those parts are different in all these four holes. So we first talk about calyx. Calyx is composed of a whole of sepals. Corolla consists of a whole of petals. These sepals and petals are the outermost two structures, and these are not the necessary structures for reproduction. These are just the accessory structures. So you must have seen the greenish leaf-like structure on the outside of a bud of a flower. So that is what sepal is. And petals are normally the colored, the bright, the beautiful parts of a flower which we normally use flower for. Flowers are generally used for aesthetic and ornamental purposes, and this is the structure, that is it is the petals which gives beauty to a flower. And this is the most brightly colored part of a flower. And then we have androecium. It consists of whole of stamens. We'll later see what is the stamen, and this is the innermost, and that is the gynoecium. It consists of a whole of pistils, and pistils are also called carpels. So in this chapter we will use these terms interchangeably. Now the main thing here to remember is these two structures are accessory or helping structures, and these two are main reproductive structures.
So we have to remember here is that a plant can or a flower can reproduce through these two. Even if these two are not present, the flower can still reproduce. Therefore, these are called essential and these are called accessory or non-essential. And instead of structure, we could also have said accessory holes and essential holes. So these are the four parts from outer to inside. So you have to remember this is the outermost and this is the innermost. So here we have talked the floral holes from their outside to inside order. So first two parts we have discussed, sepals and petals. It's not necessary to know their function, but still I am telling you. Sepals, these are greenish leaf-like structures. सो सेपल जो होता है वो प्लांट फ्लावर का सबसे बाहर वाला लेयर होता है एंड ये ग्रीनिश होता है, दैट इज इट कैन डू फोटोसिंथेसिस. प्लांट में अगर कोई भी पार्ट ग्रीन है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर क्लोरोफिल है, और अगर क्लोरोफिल है तो इट कैन डू फोटोसिंथेसिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेपल है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है. एंड हियर सी लीफ लाइक पत्ते के जैसा स्ट्रक्चर होता है ग्रीनिश एंड प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड स्टेज, यानी कि जब फूल खिला हुआ नहीं होता है, जब फूल छोटा होता है तो उस टाइम पे ये फूल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. बिकॉज जब फूल खिला नहीं रहता है तो वो बहुत ही नाजुक, दैट इज वेरी डेलिकेट और वर्सेटाइल, सो इट नीड्स प्रोटेक्शन एंड इट इज दिस सेपल स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रोटेक्टिंग इट ड्यूरिंग द बड स्टेज. एंड देन वी हैव पेटल्स, brightly colored, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये होता है नॉर्मली ब्राइटली कलर्ड होता है. तो इट्स नॉर्मली नॉट ऑलवेज, जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स लाइक एनेमोफिलस एंड देयर आर हाइड्रोफिलस आल्सो. तो जब पॉलिनेशन पानी या हवा के थ्रू होगा तो वैसे फ्लावर्स में ब्राइटली कलर्ड पेटल की जरूरत नहीं होती. बट नॉर्मली वैसे फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स उनको ये जरूरत पड़ता है कि उनका जो पेटल्स हो वो ब्राइटली कलर्ड हो. That is why you see the beautiful colors of rose or lotus or marigold or any other flower. तो उससे इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट आएंगे तभी तो पॉलिनेशन हो पाएगा इन द केस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स. नाउ सेपल्स पेटल्स का यही ब्रीफ स्ट्रक्चर था. सेपल्स पेटल्स को आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन 11th के चैप्टर 5 दैट इज मॉर्फोलॉजी चैप्टर में. तो यहाँ पर वी हैव टू जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. नाउ दैट कम्स द मेन पार्ट दैट इज androecium, and since we have studied androecium that is consists of a whole of stamens. तो यहाँ पर हम लोग सीधा stamens की बात करेंगे. So this is the main reproductive structure of a flower. सिंपल. तो जिस तरह ह्यूमंस में टेस्टिस होता है दैट इज द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल्स के केस में और फीमेल्स के केस में ओवरी होता है. तो प्लांट्स में स्टेमन्स होता है मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के तौर पे, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसके तौर पे पिस्टल या कार्पेल होगा. विल सी दैट लेटर. तो बेसिकली ये जो स्टेमन होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं. तो जो हमारा स्टेमन है उसके अंदर एक फिलामेंट होता है और एक एंथर
एंथर होता है. फिलामेंट इज जस्ट लाइक अ स्टॉक, that is it attaches the anther to the base of the flower, and anther is like this, by generally bilobed. Okay, so this part is called anther and this part is called filament. थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे कि इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा और उस एंथर को होल्ड करके रखता है फ्लावर से फिलामेंट. दैट इज दिस फिलामेंट इज एक्टिंग लाइक अ फास्टनर और अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अटैचिंग द एंथर टू द बेस ऑफ अ फ्लावर. एंड द अदर वन इज पिस्टिल और कार्पेल. सो it is the female reproductive part. Just like we have stamen in the case of male reproductive structure, we have pistil or carpel in the case of female reproductive structure. It is consists of a stigma, style and ovary. तो ये तीन पार्ट्स मिला करके पिस्टिल या कार्पेल बनाते हैं. इट्स वेरी सिंपल इन द केस ऑफ डायग्राम. So these are the three structures. That is, the first one is stigma, then we have style, and then we have ovary. So this is a brief intro of the female reproductive structure. We have to study all these structures in detail later in this chapter. So these were the brief introduction of all the four holes of a flower: male reproductive, female reproductive, and these two are accessory structure. ये दोनों reproduction में directly participate नहीं करेंगे, लेकिन बस reproduction में help करेंगे. And these two structures will directly participate in reproduction. यहाँ पर ये male reproductive structure है, तो it will form pollen grains. And this is the female reproductive structure. Therefore, इसके अंदर ovule का formation होगा. And ovule are later on forms seed after fertilization. तो ये दोनों जो structure है, ये directly reproduction में involve होंगे, directly participate करेंगे. तो अब पिस्टिल और कार्पेल का ब्रीफ इंट्रो हो गया, एंथर का भी ब्रीफ इंट्रो हो गया था. अब इसी पार्ट को डिटेल में पढ़ना है कि कैसे पॉलन ग्रेन बनेगा, कैसे उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा और कैसे उसका डेhiscence होगा. सो अ टिपिकल एंथर इज जनरली बाइलोब. ठीक है, जैसे एंथर में अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो दो लोब है ना, तो वन लोब एंड दिस इज द सेकंड लोब. तो जनरली ये जो एंथर होता है वो दो लोब का बना होता है. तो एक एंथर में दो लोब और हर एक लोब में दो थेका है. यानी कि ये जो एक एंथर हुआ उसके अंदर टोटल कितने हो गए? 4 थेका हो गए, क्योंकि एक एंथर में दो लोब और एक लोब में दो थेका. तो एक एंथर में अगर टोटल पूछा जाए कितने थेका होंगे तो वो 4 थेका हो जाएंगे. और इन्हीं के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया.
यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि टोटल 4 थेका है, 2 लोब के अंदर और एक एंथर में 2 लोब। तो हर एक थेका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर फ्यूचर पॉलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया ही आगे चल के पॉलन सैक बनाता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। तो अगर एक थेका में एक स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया है तो 4 थेका में 4 हो गए माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसीलिए जो एंथर होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। फ्रॉम केमिस्ट्री तुम लोगों को ये पता होगा कि टेट्रा वर्ड 4 के लिए यूज करते हैं, ट्राई यूज करते हैं 3 के लिए, बाई 2 के लिए, मोनो सिंगल के लिए। तो यहाँ पे टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक एंथर में 4 थेका है और हर थेका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया या फ्यूचर पॉलन सैक रहता है। तो दिस इज व्हाई एंथर इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। तो ये जो पॉलन सैक्स है या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया है, वो अगर हम उसको लेंथवाइज देखें तो वो सिलिंड्रिकल होता है, लेकिन अगर हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं एंथर का तो वहां पर हम लोगों को ये जो पॉलन सैक है वो सर्कुलर दिखता है आउटलाइन, यानी कि बाहर से देखने में वो ऊपर से अगर उसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो वो सर्कुलर दिखेगा, लेकिन वो एक्चुअली में रहता कैसा है? वो रहता है सिलिंड्रिकल। अब पॉलन ग्रेन का, पॉलन सैक का तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का बात हो गया, अब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर का बात करते हैं। तो एंथर जो होता है उसका बाहर वाला लेयर पे जो 4 पॉलन सैक्स है ना बाहर साइड से जो दिखेंगे, तो उनमें एक्सटर्नली एक ग्रुप से सेपरेशन होता है। ग्रुप का मतलब होता है लॉन्ग गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर, यानी कि जो 2 पॉलन सैक होंगे जो कि सिलिंड्रिकल होंगे नॉर्मली, तो उनके बीच में ऐसा एक गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो एक्सटर्नली दे आर सेपरेटेड बाय अ ग्रुप, लेकिन इंटरनल साइड में अगर हम देखें, मान लो ये 2 पॉलन सैक हैं, अगर ये 2 पॉलन सैक है तो एक्सटर्नली तो वो गड्ढे से रहेंगे सेपरेटेड, इंटरनली यहाँ पर एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, दैट इज स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है दैट कैन नॉट गिव राइज टू पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर ये जो स्टेराइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, इसको अंदर से दोनों चेंबर को सेपरेट कर रहा होता है। तो ऐसे पॉलन सैक्स का सेपरेशन होता है एक्सटर्नली ग्रुप से और इंटरनली बाय अ मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। Now we'll have to study the layers of anther. ठीक है, तो एंथर का जो वॉल होता है जनरली, सिर्फ स्पेसिफिकली एंथर की बात करें तो 3 लेयर का होता है, लेकिन एक्चुअली में 4 लेयर का होगा। अब जो चौथा लेयर है दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्लांट एंड व्हिच इज वी कॉल्ड एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस तो प्लांट में हर जगह होगा, यानी कि रूट के टिप से लेकर शूट के टिप तक पूरा का पूरा प्लांट ही एपिडर्मिस से ढका होता है। जस्ट लाइक हमारे बॉडी में स्किन होता है सिर से पैर तक हर जगह, उसी तरह प्लांट के लिए क्या एपिडर्मिस काइंड ऑफ स्किन हो गया प्लांट का। तो एंथर वॉल में सबसे बाहर साइड में तो एपिडर्मिस होगा ही होगा, लेकिन अंदर में 3 लेयर और होते हैं। सबसे बाहर में हो गए एपिडर्मिस, देन वी हैव एंडोथीसियम, देन वी हैव मिडिल लेयर्स,
एंड उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज द टेपटम लेयर। तो एंथर के वॉल आउटसाइड से इनसाइड ऐसे ही, सबसे बाहर में एपिडर्मिस, इसके अंदर एंडोथीसियम, देन आता है मिडिल लेयर एंड देन आता है टेपटम। तो ये जो 3 लेयर है सबसे बाहर वाले, ठीक है, इनका काम सेम ही होता है एंड दैट इज प्रोटेक्शन। इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन। as well as dehiscence। एंड टेपटम का फंक्शन होता है नरिशमेंट। तो सिंस हम लोग जानते हैं कि एंथर के अंदर क्या बनेगा, पॉलिन ग्रेज, तो पॉलिन ग्रेज को नरिश करने वाला तो कोई होना चाहिए ना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला, तो वो रोल है टेपटम का। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द 4 लेयर्स एंड ये तीनों बाहर वाले लेयर हैं। तीनों का कॉमन फंक्शन है कि जब एंथर यंग होता है, जब एंथर फॉर्म कर रहा होता है, तो उस टाइम में उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो ये यंग स्टेज में उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन यही तीनों लेयर जब एंथर मैच्योर कर गए, यानी कि जब एंथर के बर्स्ट करने का टाइम आ गया, तो यही तीनों लेयर हेल्प करता है एंथर को बर्स्ट करने के लिए भी, यानी कि इनिशियली प्रोटेक्ट कर रहा है और बाद में इसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी कि उसका जो रप्चरिंग हो रहा है एंथर का, वो भी इन्हीं तीनों लेयर की वजह से हो रहा है जो उसको पहले प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब ये चीज जान लेना है कि ये जो 4 लेयर्स हैं वो बने कहां से, और एपिडर्मिस की बात यहां पर हम लोग होगा ही होगा। Here we are concerned with endothelium, middle layers and tapetum. सो यहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे कि ये जो 3 लेयर था, एंडोथीसियम, टेपटम और मिडिल लेयर्स, ये सब बना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एंथर वॉल पढ़ेंगे कि 3 लेयर आया तो आया कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है फ्रॉम द हाइपोडर्मल रीजन ऑफ एंथर। तो ये जो आर्केस्पोरियल सेल्स होते हैं कहां से अराइज हो रहे हैं, तो ये अराइज हो रहे हैं हाइपोडर्मल रीजन से। 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में या एनाटॉमी चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट में जो मेन पार्ट होता है उसमें 3 लेयर होते हैं, एक होता है हाइपोडर्मिस, एक होता है एंडोडर्मिस एंड एक होता है एपिडर्मिस। तो यहाँ के हाइपोडर्मल रीजन से आर्केस्पोरियल सेल्स का एक स्ट्रिप निकलता है।
यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स थे ये पेरिक्लिनली डिवाइड कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पेरिक्लिनल एंड व्हाट इज एंटीक्लिनल डिवीजन। 11th क्लास में अगर आप लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो मे बी आप लोगों को ये चीज पढ़ाया गया होगा। तो जब टिश्यू या टिश्यू का एक लेयर डिवाइड करता है तो उसको या तो पेरिक्लिनल बोलते हैं या तो एंटीक्लिनल बोलते हैं। तो पेरिक्लिनल में क्या होता है कि जब सेल्स डिवाइड करेंगे तो इसके मान लो ये टिश्यू है, तो अगर इसका कोई लेयर डिवाइड करेगा ना, मान लो ये लेयर ए है, ये बी सी डी, ठीक है, तो पेरिक्लिनल डिवीजन में क्या होता है कि सेल्स ऐसे डिवाइड करते हैं कि उसी टिश्यू में लेयर बढ़ेगा। सपोज कि सेल जो बी वाला लेयर है वो डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो लेयर में बन जाएगा, दैट इज B1 एंड सेकंड वन इज B2, और ऊपर में जो लेयर थे वो रहेंगे ही रहेंगे, यानी कि A C D, तो ये लेयर रहेंगे। तो इस तरह के डिवीजन को बोला जाता है पेरिक्लिनल डिवीजन। यहाँ पर जो टिश्यू का सरफेस था, जो प्लेन है, उसी के पैरेलल नए नए लेयर्स बनते जाते हैं। यानी कि C डिवाइड करेगा तो फिर C1 C2 लेयर बन जाएगा, D डिवाइड करेगा तो D1 D2, फिर से डिवाइड करेगा तो D3 D4 बन जाएगा। तो इसी टिश्यू के लेयर के पैरेलल जब सेल्स का डिवीजन होगा तो उस तरह के डिवीजन को बोलेंगे पेरिक्लिनल डिवीजन। अब यहाँ पे जब पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा है तो दो चीज बन रहा है, एक आउटर और दूसरा इनर। तो जो बाहर वाला लेयर है उसे पेराइटल लेयर बोला जा रहा है और जो अंदर वाला है उसे स्पोरोजिनस लेयर बोला जा रहा है। यही स्पोरोजिनस लेयर आगे चल के पॉलीग्रेन बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जरूरी जानना है कि ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स थे पेरिक्लिनली डिवाइड किए और आउटर पेराइटल लेयर बना दी और इनर स्पोरोजिनस लेयर बना दी। तो यही तीन लेयर हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि टेपेटम, मिडिल लेयर्स और एंडोमीसियम बना था, लेकिन अब समझ में आ गया होगा कि कहां से बना है। तो सबसे पहले हाइपोडर्मल रीजन से आर्किस्पोरियल सेल बना, आर्किस्पोरियल सेल पेरिक्लिनली डिवाइड किया और पेरिक्लिनली डिवाइड करने के बाद वो आउटर पेराइटल लेयर और इधर स्पोरोजिनस लेयर बन गया। तो वो जो पेराइटल लेयर है फिर से डिवाइड करेंगे और तब बनेगा ये तीन लेयर, दैट इज एंडोमीसियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपेटम। और बचा ये स्पोरोजिनस लेयर, तो यही आगे चल के स्पोरोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। नाउ वी हैव टू स्टडी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इट इज जस्ट फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो pollen grains are the microcytes or the male reproductive cells that are being formed in plants. तो ये जो pollen grains है इन्हीं का बनना कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है इसी स्पोरोजिनस लेयर से बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये मेंशन करना जरूरी है कि जो स्पोरोजेनेसिस है यही पहले डिवाइड करेगा। तो ये जो स्पोरोजिनस लेयर था ये पहले माइटोटिकली डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद वो क्या बना देगा, पॉलन मदर सेल। 11th क्लास में सेल डिवीजन चैप्टर से आप लोगों को ये कांसेप्ट दिमाग में होगा कि व्हाट इज हैप्लॉइड सेल एंड व्हाट इज डिप्लॉइड सेल।
So in the case of a haploid cell, it has the number of nuclei is just, the number of chromosomes is just half. That is, a haploid cell contains only the half number of chromosomes from a diploid cell. तो यहाँ पर उसी चैप्टर में यानी कि 11th के सेल डिवीजन चैप्टर में ये पढ़ना होगा आप लोगों को कि जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस से डिप्लॉइड सेल क्रिएट होता है. अगर डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगा तो उससे डिप्लॉइड ही होगा, लेकिन अगर डिप्लॉइड सेल में मियोसिस हो जाता है तो उसमें हो जाएगा हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन. तो यहाँ पर माइटोटिकली डिवाइड हुआ है तो ये क्या होगा, डिप्लॉइड होगा. लेकिन अगर इसमें मियोसिस हो जाएगा तो यही हो जाएगा एन. तो जो डिप्लॉइड सेल होता है उसको 2n से डिनोट किया जाता है और जो हैप्लॉइड सेल होता है दैट इज डिनोटेड बाय n. तो इन्हीं पॉलन मदर सेल में मियोसिस होगा, दैट इज दीज विल डिवाइड मियोटिकली. तो 11th क्लास में आप लोगों ने मियोसिस पढ़ा होगा, तो हमें ये भी पढ़ा होगा कि मियोसिस के एंड में एक सेल से 4 सेल बनता है. दैट इज, अगर एक सेल में मियोसिस होता है तो मियोसिस जब एंड होगा दैट इज आफ्टर मियोसिस 2, तो वहां पे एक मियोसिस में 4 सेल बनता है. तो अगर एक पॉलन मदर है तो उससे कितने पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, तो 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे आफ्टर मियोसिस. दैट इज 1 PMC गिव्स राइज टू 4 पॉलन ग्रेन्स. अब ये जो 4 पॉलन ग्रेन्स है बनते ही अलग नहीं हो जाएंगे एक दूसरे से. देयर आर वेरियस स्टेप्स जिसके बाद वो अलग होंगे. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 4 पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं ये चारों सेपरेट नहीं होंगे, चारों एक दूसरे से बंधे रहेंगे ड्यू टू अ लेयर ऑफ कैलोस. तो सपोज कि ये पॉलन मदर सेल है, दिस इज PMC. तो यहाँ पर मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद इन्हीं के अंदर 4 पॉलन ग्रेन जो होंगे वो बंधे रहेंगे. और रीजन क्या है उसका कि ये जो लेयर है बाहर में, दिस लेयर इज कॉल्ड कैलोज लेयर. सो जो चौक से मैंने यहाँ पे शेड कर दिया है, दिस लेयर इज कॉल्ड अ कैलोज लेयर. तो इसी लेयर की वजह से ये जो 4 पॉलन ग्रेन्स बने हैं, विच आर स्मॉलर सर्कल्स हियर, तो ये चारों एक दूसरे से बंधे रहते हैं. सो दिस लेयर इज कॉल्ड कैलोज. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैलोज लेयर और ये इन्हीं चारों पॉलन ग्रेन्स को बांध के रखेगा. अब इस थोड़े टाइम के बाद ये कैलोज लेयर डीजेनरेट होगा. ये कैसे डीजेनरेट होगा विल सी लेटर.
तो यहाँ पर जो कैलोस से 4 पॉलन ग्रेन्स बंधा हुआ था, दैट हैज टू डीजेनरेट। तो यहाँ पर एंथर जब मैच्योर करेगा उसके बाद ये प्रोसेस होगा। तो एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड कैलेज। सो विल स्टडी लेटर कि ये कैलेज एंजाइम बनता किस लेयर से, विल स्टडी दैट इन टेक्नम एंड एंजाइम पार्ट। तो ये जो कैलोज था जो कि चारों पॉलन ग्रेन को बांध के रखे हुए था, दैट हैज टू बी ब्रोकन डाउन ड्यू टू द कैलेज एंजाइम। और इसी वजह से क्या होगा कि चारों जो पॉलन ग्रेन था वो टूट के पॉलन सैक में चला जाएगा, और वो जो पॉलन सैक है उसके अंदर अब फ्री पॉलन ग्रेन्स होंगे और उसको रप्चर होने से वो सीधा एयर में रिलीज हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे मेनली पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जो होता है ये ही मेल या एक्चुअली इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है। पॉलन ग्रेन को ही बोला जाता है इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब देखो गैमेटोफाइट क्या होता है, 11th के चैप्टर 3 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में। तो गैमेटोफाइट उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर मेल या फीमेल गैमेट होता है। तो अगर उसके अंदर मेल गैमेट है तो मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेट है तो फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट तो बोला जा रहा है बट उसके आगे ये इमैच्योर लगा है। और ये इमैच्योर क्यों लगा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेल गैमेट अभी टोटली रेडी नहीं है। We'll see later कि pollen grain से pollen tube निकलेगा और उसके अंदर मेल गैमेट बनेगा। तो that is why pollen grains are not called male gametophytes directly. They are called immature male gametophyte, क्योंकि इसके अंदर अभी मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब ये जो स्पोरोडर्म है ये पॉलन ग्रेन के कवरिंग को कहते हैं या उसके सरफेस को कहते हैं। तो ये स्पोरोडर्म खुद ही बहुत सारा मल्टीपल लेयर्स के स्टैकिंग से बनता है एंड वी हैव टू स्टडी ऑल ऑफ दोस लेयर्स। तो इसी स्पोरोडर्म के आउटर लेयर को कहा जाता है एक्साइन एंड अंदर वाले लेयर को बोला जाता है इंटाइन, ठीक है। इसका बाहर वाला लेयर हो गया एक्साइन और अंदर वाला हो गया इंटाइन। एक्साइन इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। जो बाहर वाला है दैट इज कॉल्ड सेक्साइन एंड इट इज कॉल्ड नेक्साइन, द इनर लेयर, ठीक है। This sexine layer is again divided into 3 layers. The outermost is called tectum. The middle one is called vacuolate layer. And the innermost layer is called foot layer. ठीक है। तो देखो ये सारे लेयर्स हो गए हमारे स्पोरोडर्म के, दैट इज स्पोरोडर्म खुद में पॉलन ग्रेन का लेयर है।
तो ये जो एग्जाइम है दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ वेरी हार्ड फैटी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड स्पोरोपोलिन and this enzyme is composed of pectose and cellulose, therefore it is called pectocellulosic. ये जो enzyme है this is composed of sporopollenin and this enzyme is composed of pectose and cellulose. And this enzyme is composed of pectose and cellulose. These are the two layers of sporoderm, and this layer is further divided into these layers, and we have studied them. तो ये जो टेक्टम लेयर है, this is the outermost and this is a discontinuous, that is कि ये लेयर टोटली पॉलिन ग्रेन को कवर नहीं करेगा, and likewise बैक्यूलेट लेयर भी पॉलिन ग्रेन को टोटली कवर नहीं करता है, एंड जो ये जो फुट लेयर है यानी कि सेक्साइन का जो इनर मोस्ट लेयर दैट इज द फुट लेयर, ये कंटिन्यूअस होता है यानी कि ये पॉलिन ग्रेन को अच्छे से कवर कर लेता है. So this layer is discontinuous. This is also discontinuous. But this layer is continuous. अब टेक्टम के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये जानना है कि ये टेक्टम ही होता है जो पॉलिन ग्रेन का आउटर शेप देता है, यानी कि पॉलिन ग्रेन का जो आउटर अपीयरेंस होने वाला है वो कैसा होगा, उसमें अलग अलग तरह के वेरिएशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल ट्यूबरकल्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, बट ये सारी चीजें नॉर्मल क्लास में डिस्कस की जाती है. ये क्रैश कोर्स की बात है तो यहाँ पे उसको शॉर्ट में मिलता है. तो यहाँ पर ये जो टेक्टम है इसका वेरिएशन होगा और इसी की वजह से पॉलिन ग्रेन जो है डिफरेंट टाइप्स का लगेगा. अब कोई भी बायोलॉजिस्ट अगर माइक्रोस्कोप से पॉलिन ग्रेन को देखता है तो इसी टेक्टम वाले लेयर को देख के वो ये पहचान पाता है कि ये किस स्पीशीज का है, मैंगो का है या गुआवा का है या रोज का है या चाइना रोज का है. तो ये टेक्टम ही है जिसकी वजह से वो अपीयरेंस होता है पॉलिन ग्रेन का, जिससे कि किस स्पीशीज का है वो ये डिटरमाइन किया जा सकता है. तो ये तो हो गई पॉलिन ग्रेन के आउटर सरफेस की बात. अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिन ग्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है. अब जो पॉलिन ग्रेन एंथर से रिलीज होगा उसके बेसिस पे हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे. एक है 2 सेट स्टेज और दूसरा है 3 सेट स्टेज. तो ये जो 2 सेट स्टेज है ये अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पे पाया जाता है. यानी कि जब ये पॉलिन ग्रेन एंथर से रिलीज होगा तो उसके पहले का हम लोग ये पहले डायग्राम देख लेते हैं. तो ये पॉलिन ग्रेन है, उसके अंदर ये उसका न्यूक्लियस है. तो ये बिफोर रप्चरिंग ऑफ एंथर. अब जब एंथर रप्चर करेगा तो ये जो पॉलिन ग्रेन है ये 2 सेल स्टेज में आ चुका होगा. उस समय पे क्या होगा कि एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा इस साइड में और एक छोटा सा सेल होगा एंड उसके बाहर में एक बड़ा सा सेल होगा दैट इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव सेल. ठीक है. एंड इसका जो न्यूक्लियस होता है ये थोड़ा इररेगुलर शेप का होता है. इसका न्यूक्लियस प्रॉपर्ली स्फेरिकल होगा और इसका न्यूक्लियस इररेगुलर होता है.
This cell is called vegetative cell, and this cell is called generative cell. ये जो वेजिटेटिव सेल है इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व्स होते हैं। और ये जो दूसरा हमारे पास जेनरेटिव सेल है यही मेल गैमीट्स फॉर्म करेगा, यानी कि जब जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगा तो दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमीट्स। तो 60% एंजियोस्पर्म में इसी स्टेज पे एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। तो व्हाट हैपेंस इन द लास्ट 40%, तो इन द रिमेनिंग 40% तो मेल गैमीट यानी कि जो बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म है उसमें ये जेनरेटिव सेल एंथर से निकलने से पहले ही 2 में डिवाइड कर चुका होगा, यानी कि ये वाला जो स्टेज है ये सेम रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो वेजिटेटिव सेल था वो तो रहेगा ही, तो ये बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल तो वो है नहीं, लेकिन उसके आसपास 2 और छोटे छोटे मेल गैमीट्स फॉर्म हो चुके होंगे। तो ये जो बड़ा वाला सेल था वो तो रहेगा ही, यानी कि दिस इज द वेजिटेटिव सेल, एंड these two are not generative cell but these two are male gametes। तो जब पॉलन ग्रेन इनमें रिलीज होगा तो इनमें टोटल 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल हो चुका है, और यहाँ पर 1 सेल और 2 सेल 2 ही सेल था, यानी कि यहाँ पे 2 सेल स्टेज में निकला और यहाँ पे 3 सेल स्टेज में निकला। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीस 2 टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन व्हिच आर शेड ड्यूरिंग एंथर रप्चरिंग। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट था प्लांट का वो तो हो गया, एंड ये जो पॉलन ग्रेन से जो पॉलन ट्यूब बनेगा और उसमें मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो हम लोगों को फिर से देखना है, बट आफ्टर पॉलिनेशन जो जेनरेटिव सेल है 60% एंजियोस्पर्म में जो 2 मेल गैमेट बनाएगा ना, दैट विल हैपन आफ्टर पॉलिनेशन, दैट इज फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। जब ट्रांसफर हो जाएगा पॉलन ग्रेन का तब जाके वो होगा। तो वी विल स्टडी दैट प्रोसेस आफ्टर वी स्टडी पॉलिनेशन। सो जो मेल रिप्रोडक्टिव था वो तो हो गया, अब विल स्टडी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाज पिस्टल और कार्पेल, ठीक है। अब ये जो पिस्टल कार्पेल है मेरी 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, वी हैव स्टडीड दैट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब ये जो स्टिग्मा है इसका पर्पस अलग है, स्टाइल का और ओवरी का पर्पस अलग है, तो वी हैव टू स्टडी दोस थिंग्स। तो ये जो स्टिग्मा है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फंक्शन है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। तो ये जो स्टिग्मा है वो पार्ट है जहां पर पॉलन ग्रेन्स आके सबसे पहले डिपॉजिट होते हैं प्लांट, यानी कि स्टिग्मा के अलावा
फ्लावर पे अगर कहीं भी पॉलन ग्रेन आके डिपॉजिट होता है तो दैट इज यूजलेस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टिग्मा पे ही पॉलन ग्रेन का काम है। तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आता है तो उसके बाद वो जर्मिनेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स एंड प्लांट्स में ये बात देखना कि प्लांट्स खुद तो डिसाइड नहीं कर सकते कि किसका पॉलन ग्रेन आके उस पे गिरेगा, वो तो इंसेक्ट की वजह से होगा या वाटर की वजह से होगा या एयर की वजह से होगा। तो अगर एक स्टिग्मा पे जो कि मैंगो प्लांट का स्टिग्मा है और अगर उसपे गुआवा प्लांट का पॉलन ग्रेन आके गिर जाता है तो अगर वो पॉलन ग्रेन आके जर्मिनेट कर जाएगा और उसका मेल गैमेट मैंगो के साथ फ्यूज कर जाएगा तो वो बहुत एब्नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो स्टिग्मा है ये डिसाइड कर सकता है, इट हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन ग्रेन्स कि ये मेरे स्पीशीज का है या फिर दूसरे स्पीशीज का है। तो दैट इज कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी। अगर वो सेम स्पीशीज का है तो स्टिग्मा चाहे तो उसको जर्मिनेट करने देगा और अगर वो डिफरेंट स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आ गया तो वो उसको जर्मिनेट नहीं करने देगा। इमेजिन करो कि किसी भी ऑर्चर्ड में बहुत सारा या किसी भी फील्ड में बहुत सारा प्लांट्स लगा हुआ है, तो एक फील्ड में राइस हो सकता है, दूसरे फील्ड में कुछ और हो सकता है, तो या फिर राइस के साथ साथ जो अदर क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो हो सकते हैं। तो अगर राइस का जो पॉलन ग्रेन है किसी और पे जाता है तो वहां पे वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। लाइकवाइज व्हीट और मस्टर्ड अगर लगा हुआ है किसी फील्ड में तो मस्टर्ड का पॉलन ग्रेन व्हीट प्लांट में जर्मिनेट नहीं कर सकता है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्टिग्मा। तो ये जो स्टाइल है ये सॉलिड भी हो सकता है या हॉलो भी हो सकता है, यानी कि एक पाइप, छोटा सा पतला सा पाइप की तरह स्ट्रक्चर है, ये सॉलिड भी हो सकता है या हॉलो भी हो सकता है, एंड इट्स अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो पर्पस है तुम लोग देख सकते हो, स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करना है, इसका मेन पर्पस यही होता है, एंड ओवरी इज द मेन पार्ट दैट इज तो ये जो ओवरी है क्रिस्टल का सबसे नीचे वाला पार्ट है, यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, एंड इट इज स्वोलन। बाकी वाले पार्ट्स काफी छोटे छोटे पतले पतले हैं, बट ये जो होता है वो स्वोलन होता है और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा एंड द अदर पार्ट इज कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, तो ये जो ओव्यूल है आगे चल के यही सीड बनाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड ये जो ओवरी है यही आगे चल के फ्रूट बनाएगा। यानी कि तुम लोग आज तक जितने भी फल खाए होगे, जो भी फ्रूट तुम अभी तक खाए हो, वो जनरली 99% क्या होगा, वो ओवरी तुम लोग खा रहे हो। यानी कि ये जो ओवरी है यही आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूल ये बनाएगा फ्रूट, और ये जो ओव्यूल है ये फॉर्म करेगा आगे चल के सीड। तो जब फ्लावर है वो फर्टिलाइज हो जाएगा तब ओवरी बनाएगा फ्रूट और ओव्यूल बना देगा सीड।
Now we have to study ovule, the structure of ovule in detail. ओव्यूल है ओवरी का मेन पार्ट है, यानी कि जो मेन पार्ट रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाला है ओवरी का, ये ओव्यूल पार्ट है। ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम तुम लोगों ने फिर से 11th के पहले 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा, जो प्लांट किंगडम है 11th का 3rd चैप्टर, उसी में मेगास्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ना है। अब मेगास्पोरेंजियम उसको बोलते हैं जिसके अंदर फीमेल का गैमेट बनता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम उसको बोलते हैं जिसके अंदर मेल का गैमेट बनता है। तो जो हमारा एंथर था वो था माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर जो पॉलन सैक था उसी को तो बोलते हैं, और यहाँ पे ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। ये जो ओव्यूल है हमारा, इसके अंदर पैरेन्काइमा का टिश्यू भरा हुआ है। 11th क्लास में फिर से तुम लोगों ने पढ़ा होगा पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और पॉलेन्काइमा। तो ये जो ओव्यूल है इसमें पैरेन्काइमा वाला टिश्यू भरा हुआ है, और उस टिश्यू को बोलते हैं यहाँ पर न्यूसेलस, और उस न्यूसेलस का जो कवरिंग है, दैट इज द आउटर मोस्ट कोटिंग ऑफ द न्यूसेलस, दैट इज कॉल्ड इंटेगुमेंट। अब we'll see later in this chapter that these integuments will form the seed coat after fertilization। तो जो भी सीड तुम लोग देखते हो उसका जो छिलका निकलता है, दैट इज दिस इंटेग्यूमेंट दैट फॉर्म्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जनरली हर किसी को कंफ्यूजन होता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे लोकेटेड होता है। तो उसी के लिए सिंपल सा एरो फॉर्म में हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, जिससे कि तुम लोगों को पता चलेगा कि ओवरी किससे जुड़ा है, फिर वो स्ट्रक्चर किससे जुड़ा है, और वो स्ट्रक्चर कैसे ओव्यूल से जुड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखना है कि जो ओवरी है, ओवरी से क्या जुड़ा हुआ है, दैट इज प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा से क्या जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस लोकेशन पे जुड़ता है दैट इज कॉल्ड हाइलम, एंड हाइलम के बाद जो मेन ओव्यूल का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरी ओव्यूल से जुड़ा होता है। ओव्यूल से, ओवरी से क्या निकला, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या जुड़ा हुआ है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ओव्यूल से कहां आके जुड़ता है, हाइलम। सो देयरफॉर ये जो हाइलम है, ठीक है। तो फ्यूनिकल और ओव्यूल का जंक्शन को हाइलम यहाँ पे कहते हैं। हाइलम ऑलवेज रिमेन्स ऑन द सीड इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हाइलम एक स्कार की तरह होता है, एक दाग की तरह रह जाता है। जब सीड प्लेसेंटा से अलग हो जाता है या फिर अपने ओवरी वाले पार्ट से सीड बाहर आ जाएगा, तो भी हाइलम एक स्कार की तरह, एक दाग की तरह रह जाता है। एंड ये हम लोग बात करेंगे ओव्यूल का इंटरनल पार्ट का, दैट इज न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट्स।
जिस तरीके से पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट्स बना था, तो उस पॉलन ट्यूब को क्या बोलते हैं? मेल गैमीटोफाइट। तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा और इसीलिए एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं। तो ओव्यूल में क्या क्या हो गया? सबसे बाहर में इंटेगुमेंट्स का लेयर हो गया। ये डायग्राम एनसीईआरटी में काफी अच्छे से दिया, यू कैन सी दैट। तो ओव्यूल का सबसे बाहर वाला लेयर हो गया इंटेगुमेंट। उस इंटेगुमेंट के अंदर क्या हो गया? न्यूसेलस। और उस न्यूसेलस के अंदर में क्या होगा? ये एम्ब्रियो सैक। एंड इसी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। सो हियर बाय विल स्टार्ट मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। तो इफ यू रिमेंबर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वहां पे हाइपोडर्मिस वाले पार्ट थे, आर्किस्पोरियल सेल्स बने थे। एंड यहां पर भी सेम प्रोसेस होगा, लेकिन ये हाइपोडर्मल सेल जो होगा वो न्यूसेलस का पार्ट होगा, बिकॉज एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूसेलस। अब देखो ओव्यूल का दो रीजन होता है, एक होता है माइक्रोपाइलर रीजन और दूसरा होता है चलाजल रीजन। तो माइक्रोपाइल जो होता है इट्स लाइक अ पोर्ट, जैसे तुम्हारा माउथ से तुम्हारे अंदर क्या जाता है? फूड एंड वाटर, नोज से एयर जाता है, उसी तरह ओव्यूल के अंदर वाटर एयर जाने का साइड होता है माइक्रोपाइल। तो जिस साइड माइक्रोपाइल होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन, एंड उसके जस्ट ऑपोजिट वाले साइड को बोला जाता है चलाजल एंड या चलाजल पोल। तो जिस साइड माइक्रोपाइलर एरिया है उसी साइड न्यूसेलस से एक आर्किस्पोरियल सेल अराइज करेगा और फिर ये डिवाइड करेगा। देखो आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड किया था इन द केस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आल्सो, तो वहां पे उसने पैराइटल सेल और स्पोरोजेनस सेल बनाया था। यहां पर भी सेम चीज हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जो इनर स्पोरोजेनस सेल है ये डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन कर रहा है। इसी का डिवीजन हम लोगों को एम्ब्रियो सैक में पढ़ना है, तो दैट इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। ये कैसे बना? तो ये बना स्पोरोजेनस सेल से। स्पोरोजेनस सेल किससे बना? आर्किस्पोरियल सेल से। और आर्किस्पोरियल सेल किससे बना? तो न्यूसेलस से बना। एंड इसी मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा। तो दिस इज 2n। जैसे वहां पर हम लोग पॉलन ग्रेन के केस में पढ़े थे कि पॉलन मदर सेल भी 2n था, और यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल भी 2n है, यानी कि इसमें क्या होगा? मियोसिस, और मियोसिस से फिर से 4 सेल बन जाएगा।
जो सेल्स के अंदर एक सेल को डिवाइड किया था, और जो एमएमसी है हम लोग यहाँ पे एमएमसी से देखेंगे। दैट इज जो एम्ब्रियो सैक है हमारा, या फिर जो ओव्यूल है, वहां पर ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक से बना था एक सेल, तो ये हो गया एमएमसी। ठीक है, ये ओव्यूल है, उसी के अंदर ये सारा पार्ट हो रहा है। अब ये हो अंडर वो होगा मियोसिस। मियोसिस के बाद यहां पर 4 सेल बनेगा। ठीक है, तो इन चारों में से ये तीनों जो होगा ये डेड हो जाएगा, आगे चल के डीजेनरेट कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, चलाजल एंड, और ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि यहां पर पोर है तो ये माइक्रोपाइलर एंड। अब ये जो तीनों होगा ये डीजेनरेट कर जाएगा, और ये जो चलाजल साइड में है यही बचेगा। यानी कि थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि जो ओव्यूल है इसके अंदर ये तीनों डेड ऑफ हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एक, ये वाला। तो वहां पर क्या हुआ था मैंथर वाले केस में कि एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बना था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एक मेगास्पोर मदर सेल में से 4 सेल बना, लेकिन 4 में से 3 मर गया, तो अल्टीमेटली एक ही बचा। तो एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनता है, लेकिन एक मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है यही आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो नाउ विल बी स्टडीइंग ओनली एम्ब्रियो सैक, नॉट द होल ओव्यूल। तो ये यहाँ पर भी माइक्रोपाइलर एंड हो गया और ये चलाजल एंड हो गया। तो हम लोग सिर्फ इस पार्ट को लेके आगे बढ़ेंगे, इसी पार्ट का हम लोग डिवीजन देखेंगे। तो ये जो है एनलार्ज हो जाएगा, अब ये वाला सेल जो है वो माइटोसिस करेगा, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है, या फिर ये पार्ट अब हो गया एम्ब्रियो सैक। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड करके 2 सेल बना देगा। ठीक है, एक सेल 2 सेल। अब यहां से 2 से 4 हो जाएगा, फिर यहां, फिर यहां, और यहां से ये दोनों फिर से डिवाइड कर जाएगा, तो 4 से 8 हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा कि एक सेल यहां से और एक न्यूक्लियस यहां से और एक न्यूक्लियस यहां से बीच में चला जाएगा, यानी कि टोटल 8 न्यूक्लियस हुआ है। तो यहां पर एक सेल और यहां पर का एक सेल बीच में आ जाएगा, और 3-3 सेल दोनों साइड में रहेगा। यानी कि यहां पर 3 सेल, 3 न्यूक्लियस रहेगा, बीच में 2 न्यूक्लियस आ जाएगा, और यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये पार्ट जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर टोटल कितना हो गया, 1 2 3 तो 5 3 8 न्यूक्लियस। और ये 8 न्यूक्लियस किससे बना है अल्टीमेटली, तो ये बना है सिर्फ इस पार्ट से, यानी कि इस पार्ट से। ये किसका न्यूक्लियस था, तो ये था मेगास्पोर मदर सेल से जो मियोसिस हुआ है वो जो बना है वो पार्ट। तो ये टोटल 8 न्यूक्लियस। अब इसमें से ये जो 3 है इन्हें कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो है इन्हें बोला जाता है पोलर न्यूक्लियस, या फिर सेंट्रल सेल भी कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और यहां पर ये जो साइड वाले दो है इन्हें कहा जाता है सिनर्जिड्स या कोऑपरेटिव सेल, एंड ये जो बीच वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एग न्यूक्लियस, या इसे एक सेल भी कह सकते हैं उसके बाहर वाला साइटोप्लाज्म को लेके। और ये जो दो है उसके दोनों साइड में दोज आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। तो ऐसे फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर मदर सेल से फीमेल गैमेटोफाइट का और फीमेल गैमीट का। तो यहाँ पर इतने सारे सेल्स हैं, लेकिन इनमें फीमेल गैमीट कौन है, तो इनमें जो फीमेल गैमीट है वो है एग न्यूक्लियस। और पॉलन ग्रेन के अंदर कैसे बना था, तो पॉलन ग्रेन में जब जनरेटिव सेल डिवाइड किया था तब 2 मेल गैमीट बना था, और यहाँ पर ये एग न्यूक्लियस डायरेक्टली फीमेल गैमीट का काम करेगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसमें ध्यान देने वाली चीज है कि टोटल 8 न्यूक्लियस है यहाँ पर और 7 सेल्स हैं। अब वो क्यों है वो देखते हैं।
8 न्यूक्लियस तो यहाँ से दिख रहा है कि 8 न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी 8 न्यूक्लियस है, लेकिन 7 सेल ही क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है दिस वन, ये पूरा एक सेल है और इसी सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ रहा है ना, तो एक न्यूक्लियस को उसके चारों तरफ मिला के उसका सेल होगा, वैसे वैसे करके ये 6 हो गया, 3 ऊपर 3 नीचे। लेकिन यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई और ये वाला जो बड़ा वाला सेल होगा ये उसी के अंदर में होगा, तो टोटल हो गए 7 सेल लेकिन 8 न्यूक्लियस। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि इस टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है इसको कहा जाता है पॉलीगोनम टाइप। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक दैट इज फॉर्म्ड इन प्लांट्स। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखने वाली है कि ये तो एनलार्ज होगा, लेकिन ये जो डिविजन हो रहा है वो होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड कर रहा है लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। तो जब 8 न्यूक्लियस बन गया इसके बाद सेल साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि सेल वॉल डिपोजिशन या सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगा सारे सेल्स के अलग। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ तक ये 8 न्यूक्लियस बन गया, उसके बाद यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा। तो अगर 11th क्लास में माइटोसिस और मियोसिस ध्यान में है तो उन लोगों को ये चीज क्लियर होगा। 11th क्लास में साइटोकाइनेसिस भी पढ़ना था चैप्टर 10 में, और ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है ये भी पढ़ना था वहां पर। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कितनी बार को आपको ध्यान में रखना है, तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, यानी कि टोटल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कितने बार यहाँ पे होंगे, तो टोटल 3 टाइम्स। 1 से 2 एक बार, 2 से 4 2 बार और 4 से 8 3 बार। तो टोटल 3 टाइम्स फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, तो 8 न्यूक्लियस बन रहा है और 8 न्यूक्लियस के बाद 7 सेल स्ट्रक्चर बन रहा है आफ्टर साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ 8 न्यूक्लियस है और 8 न्यूक्लियस के बीच में जब साइटोकाइनेसिस हो गया तब जाके वो 7 सेल का स्ट्रक्चर बना है। तो दिस इज द बेसिक लेआउट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये तो 2n होगा क्योंकि ये डिप्लॉयड है, लेकिन यहां पर ये मियोसिस हो गया ना, तो ये चारों सेल जो होगा वो n होगा और ये जो बना है सेल यहाँ पर ये भी तो n होगा। एंड इसके बाद ये जितने भी हैं सारे के सारे n होंगे क्योंकि ये मियोसिस के बाद बने हैं। अब वहां पे एक चीज ध्यान देना है कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इस सेंट्रल सेल में, तो ये सेंट्रल सेल होगा बाइन्यूक्लियेट। बाइन्यूक्लियेट क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल 2 न्यूक्लियस है एक ही सेल के अंदर। तो नॉर्मली तो सेल यूनिन्यूक्लियेट होता है ना, यानी कि उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 न्यूक्लियस है एक ही सेल के अंदर। तो जो पोलर न्यूक्लियाई विद इन द पोलर सेल है दैट इज बाइन्यूक्लियेट। ये तो बात हो गई सेंट्रल सेल की, और बाकी सारों में एक ही न्यूक्लियस है, तो उसमें क्या होगा कि यूनिन्यूक्लियेट है और ये सिर्फ सेंट्रल सेल जो कि तो जिसके अंदर कौन है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये हो गया बाइन्यूक्लियेट। तो हियर बाय वी कंप्लीट मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे फीमेल गैमीट कौन बना, ये एक न्यूक्लियस है, यही फीमेल गैमीट का काम करेगा। फीमेल गैमीट बन गया, दैट मींस कि मेगास्पोरोजेनेसिस कंप्लीट है। तो अभी तक हम लोग मेल गैमेट का फॉर्मेशन देख चुके हैं, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देख चुके हैं। तो अब उस प्रोसेस को पढ़ेंगे जो कि मेल और फीमेल गैमेट को मिलाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन।
अब यहाँ पे सेम स्पीशीज बहुत कीवर्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी भी प्लांट का, फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट का या रोज प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है, अगर वो मैरीगोल्ड या गुआवा या फिर राइस या फिर वीट किसी भी और प्लांट पे गिरता है तो उसको पॉलिनेशन नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मैंगो प्लांट का पॉलन ग्रेन मैंगो प्लांट के ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है तो उसको पॉलिनेशन मानेंगे। तो पॉलिनेशन हमेशा सेम स्पीशीज के बीच ही होगा, कभी भी दो स्पीशीज यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते नेचुरली। आर्टिफिशियली ह्यूमंस तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नेचुरल केस में पॉलिनेशन हम लोग तभी मानेंगे जब सेम स्पीशीज के बीच में ट्रांसफर हुआ है। तो अब पॉलिनेशन के टाइप्स देख लेते हैं। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। ये 10th क्लास में 11th क्लास में बच्चों को आइडिया होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, लेकिन यहां पर तुम लोगों को इसके भी दो टाइप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी, ठीक है, एंड द अदर वन इज गीडोगेमी। ऑटोगेमी के भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज Chasmogamy, the other one is Cleistogamy, and the third one is bud pollination. गिडनोगेमी का टाइप्स नहीं पढ़ना है, गिडनोगेमी हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे। अब क्रॉस पॉलिनेशन 2 टाइप से होते हैं। First one is through abiotic agents, and the other one is through biotic agents. तो abiotic में जनरली 2 ही चीज के थ्रू होता है पॉलिनेशन। The first one is air and the other is water. Air and the other one is water. जब पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है दैट इज कॉल्ड एनेमोफिली। अगर एयर के थ्रू हो रहा है तो इसको बोलेंगे एनेमोफिली। और जब पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा तो उस तरह के पॉलिनेशन को बोलेंगे हाइड्रोफिली। अब बायोटिक एजेंट्स ही हम लोग को मेनली पढ़ना है, और बायोटिक एजेंट्स में बहुत सारे हैं, तो उन सबको एक एक करके देख रहे हैं। द फर्स्ट वन इज थ्रू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है तो वी विल कॉल दैट एंटेमोफिली। अगर स्नेल्स के थ्रू हो रहा है तो we call that malacophily. अगर ants के थ्रू हो रहा है, चींटियों के थ्रू, तो we call that myrmecophily. अगर bats के थ्रू हो रहा है तो we call that chiropterophily. अगर बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो वी कॉल दैट ऑर्निथोफिली।
these are the normal pollinating agents. That is, first of all, यहाँ जो सेल्फ पॉलिनेशन उसकी बात कर लेते हैं. तो ऑटोकेमी में चेस्मोकेमी, क्लिस्ट्रोकेमी एंड बड पॉलिनेशन. गिडेनोकेमी फिर क्रॉस पॉलिनेशन में एबायोटिक एजेंट के थ्रू और बायोटिक एजेंट. एबायोटिक में एयर और एयर के थ्रू हो रहा है तो एनेमोफिली, वाटर के थ्रू हो रहा है तो हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो एंटेमोफिली, स्नेल्स मेलाकोफिली, एंड्स मिल्मेकोफिली, बैट्स काइरोप्टेरोफिली, एंड अगर बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो ऑर्निथोफिली उसको मानते हैं. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दैट वी हैव टू स्टडी. अब इनमें से हम लोग ईच वन को डिटेल में पढ़ेंगे. जो सबसे पहला टाइप का पॉलिनेशन था वो था चेस्मोकेमी. सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो तरह के फ्लावर्स होंगे. वैसे फ्लावर जो खुलते हैं और ऐसे भी फ्लावर्स हम लोग देखेंगे जो कि खुलते ही नहीं कभी, यानी कि वो हमेशा क्लोज रहेंगे. नॉर्मली फ्लावर्स को जिसको हम लोग ब्लॉसम बोलते हैं या ब्लूम बोलते हैं, तो वो ब्लूमिंग या ब्लॉसमिंग कुछ फ्लावर्स में होता है जिसको कि चेस्मोकेमस बोलते हैं, और कुछ फ्लावर जिसमें नहीं होगा दैट इज कॉल्ड क्लिस्ट्रोकेमी. अब एग्जाम्पल में चेस्मोकेमस और क्लिस्ट्रोकेमस दोनों के एग्जाम्पल में सेम ही चीज है. द फर्स्ट वन इज कॉमेलिना. वी आल्सो हैव ऑक्सैलिस, वी आल्सो हैव वायोला. ठीक है, तो ये तीनों फ्लावर्स में क्या होता है कि ये दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे, चेस्मोकेमस भी और क्लिस्ट्रोकेमस भी. तो कभी कभी क्या होता है कि चेस्मोकेमी किसी कारण से अगर नहीं हो पा रहा है तो वहां पर सीड तो नहीं बन पाएगा, तो उस केस में क्लिस्ट्रोकेमी होगा ही होगा. तो क्लिस्ट्रोकेमी के साथ रीजन दिक्कत ये है कि ये सीजन में लेट होगा. अगर चेस्मोकेमी फेल कर जाता है तब जाके क्लिस्ट्रोकेमी होगा, यानी कि ये एश्योरिटी देता है कि सीड बनेगा ही. और पॉलिनेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तभी सीड बनेगा, यानी कि पॉलिनेशन इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सीड फॉर्मेशन. तो ये जो होगा, अगर चेस्मोकेमी फेल कर जाएगा तो क्लिस्ट्रोकेमी फेल कर ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लावर खुलेगा ही नहीं. फ्लावर खुलेगा नहीं तो एंकर से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा वो तो कहीं और जाएगा नहीं, सेम ही फ्लावर में रहेगा, यानी स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा. तो ये जो क्लिस्ट्रोकेमी है एश्योरिटी देता है.
The third one was bud pollination. तो सोचो कि जब फ्लावर खुला ही नहीं है, बड ओपन हुआ ही नहीं है, तो उसके पहले ही वहां पे पॉलिनेशन हो चुका होता है, यानी यहाँ पर इससे सिमिलर है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था कि वो कभी नहीं खुला था, लेकिन ये फ्लावर्स खुलेंगे लेकिन आफ्टर पॉलिनेशन, तो यहाँ पे अश्योरिटी होता है कि पॉलिनेशन हो चुका होगा। एंड दिस अकर्स वेरी कॉमनली इन पैडी एंड वीट। राइस नहीं बोलते हैं बायो में, जब हम लोग प्लांट की बात करेंगे तो राइस नहीं, राइस का ग्रेन जो हम लोग खाते हैं उसको राइस कहा जाता है। बायो में जो राइस का प्लांट होता है दैट इज कॉल्ड पैडी प्लांट। तो यहाँ पे हम लोग राइस नहीं लिखे हैं, यहाँ पे पैडी लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लांट को पैडी बोला जाएगा, ना कि राइस। एंड दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ऑटोगेनी। एंड इसके अलावा हम लोग को कीटोनोकेमी भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्लांट में तो एक से ज्यादा फ्लावर जनरली आते ही हैं, तो उन्हीं एक प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोनोकेमी। लेकिन यहाँ पे एक और सिमिलरिटी है, मतलब डिफरेंस है, वो क्या है कि जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के बीच में, यानी कि दो अलग अलग प्लांट है ना, अगर वो दोनों प्लांट काफी ज्यादा जेनेटिकली सिमिलर है और अगर उन दोनों के बीच में पॉलिनेशन होता है तो उसको भी कीटोनोकेमी बोलेंगे। तो कीटोनोकेमी दो तरह से हो सकता है, एक ही प्लांट का दो फ्लावर के बीच में हो जाए, या दो ऐसा प्लांट जो कि एकदम ही सिमिलर हो। फॉर एग्जांपल मैंगो का बहुत सारा वेराइटीज होता है, दशहरी होता है, बीजू होता है, मालदा आम होता है, बहुत अलग अलग टाइप के वेराइटी। तो मैंगो का एक ही वेराइटी का दो प्लांट के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको भी कीटोनोकेमी मानेंगे, उसको क्रॉस पॉलिनेशन नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो दो प्लांट है वो जेनेटिकली इतना सिमिलर होगा कि उसको डिफरेंट प्लांट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हम लोग। तो इसीलिए अगर वैसा दो प्लांट के बीच में हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड कीटोनोकेमी, नॉट क्रॉस पॉलिनेशन। So now we'll start cross pollination. Cross pollination is also called xenogamy. तो कीटोनोकेमी में जो पॉलिनेशन हो रहा था वो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉलिनेशन बिटवीन टू
जेनेटिकली डिफरेंट, यानी कि यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स होंगे और कीटोनोगैमी में क्या होगा कि जेनेटिकली सिमिलर था। और यहाँ पर सेम स्पीशीज भी लागू होता है, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि डिफरेंट है जेनेटिकली तो दूसरा स्पीशीज के साथ पॉलिनेशन करा देंगे, यहाँ पर वो चीज नहीं होगी। यहाँ पर नॉर्मली पॉलिनेशन होगा लेकिन सेम स्पीशीज के डिफरेंट जेनेटिकली प्लांट्स में होगा। The first type in this case was hydrophily. पॉलिनेशन थ्रू वाटर। अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो बस ध्यान में रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इमेज जो भी है वो है इसका एग्जांपल। अब पॉलिनेशन थ्रू वाटर हो या तो वाटर के सरफेस के ऊपर होगा ये पॉलिनेशन, या सबमर्ज प्लांट में वाटर के सरफेस के नीचे होगा। The other one is anemophily. एनेमोफिली में पॉलिनेशन थ्रू विंड। एग्जाम्पल ध्यान में रखते हैं, मेज, कोकोनट, खजूर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में डेट पाम कहा जाता है। फिर नॉर्मली जो पाम्स होते हैं एक्सेट्रा, तो इन सब में पॉलिनेशन थ्रू विंड होता है। व्हाट वी हैव टू रिमेंबर हियर इज दैट, बाकी इसकी जो मेन डिटेल्स है वो मैं नहीं लिखवा रहा क्योंकि वो जनरली एक्सप्लेन कर देंगे दोनों को। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पॉलिनेशन थ्रू वाटर में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर पॉलन ग्रेन जो एक्वेटिक प्लांट्स में बन रहा है वो अगर पॉलन ग्रेन ज्यादा हैवी होगा तो वो तो सिंक कर जाएगा नीचे, पानी के सरफेस पे आ ही नहीं पाएगा। तो पॉलिनेशन थ्रू वाटर में क्या याद रखना है कि पॉलन ग्रेन्स विल बी वेरी लाइटर, यानी कि पानी के डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी नहीं होगी पॉलन ग्रेन की, नहीं तो पॉलन ग्रेन ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, वो तो सीधा नीचे गिर जाएगा। तो पॉलन ग्रेन विल बी नॉर्मली डेंसर, नॉट डेंसर देन वाटर, इक्विवेलेंट डेंसिटी होगा पानी का और पॉलन ग्रेन का। दूसरी चीज याद रखना है कि वेरिस्नेरिया में जो उसका स्टिग्मा होता है वो काफी लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है। तो जब पॉलिनेशन करना होता है तो वो रिबन जैसा खुलता है और वो स्टिग्मा ऊपर तक चला जाएगा। आफ्टर पॉलिनेशन स्टिग्मा फिर से कॉइल्ड हो जाएगा और स्टिग्मा नीचे की ओर आ जाएगा। तो दूसरी चीज याद रखना है कि वेरिस्नेरिया हो या ज़ोस्टेरा हो, यहाँ पर क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन है वो नॉन स्टिकी होगा, उसके ऊपर एक ऑयली लेयर होगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा चिपचिपा नहीं होगा। दूसरी चीज कि जो ज़ोस्टेरा हो गया या फिर जो अदर सी ग्रासेस होते हैं उनमें जो स्टिग्मा या पॉलन ग्रेन का जो नॉर्मल सरफेस होगा वो अनवेटेबल होता है, यानी कि वो टोटली भीग नहीं सकते हैं। तो उस तरह का फीचर होता है वहां पर। दूसरा चीज क्या है जो याद रखना है वो ये है कि सारा का सारा एक्वेटिक प्लांट में वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली के अंदर, वाटर हियासिंथ के अंदर, लोटस के अंदर, ये सारे लीफ जो फ्लावर्स होते हैं ये कम होते हैं, सरफेस पे होते हैं। तो अगर सरफेस पे है तो इंसेक्ट तो आ सकते हैं ना, तो सारा एक्वेटिक प्लांट में जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू नहीं होगा। एग्जांपल वाटर हियासिंथ, वाटर लिली एंड लोटस, यहाँ पे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा। और जो हाइड्रोफिली है दो टाइप का हो सकता है, एक पानी के नीचे यानी कि सबमर्ज्ड और दूसरा पानी के सरफेस पे, तो वो दो टाइप का वेरिएशन होता है। अब आते हैं एनेमोफिली। एनेमोफिली में पॉलिनेशन थ्रू विंड है, एग्जांपल लिखा हुआ है। अब इसका जो मेन फीचर्स है वो बता दे रहे हैं। ऑरेंज यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है सिंस उनको हवा के साथ ट्रेवल करना है, यानी कि बहुत बहुत लाइट होंगे, तो पॉलन ग्रेन्स इन द केस ऑफ पॉलिनेशन थ्रू विंड विल बी वेरी वेरी लाइट, एकदम नॉन स्टिकी होंगे और बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज के होते हैं एंड न्यूमरस नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। अब इसका जो एंथर होता है इन द केस ऑफ एनेमोफिली, एंथर इज वेरी वर्सेटाइल, बहुत नाजुक होता है, बहुत डेलिकेट होता है। तो ये जो एंथर है वो बहुत इजीली बर्स्ट कर जाएगा। और जो फ्लावर है, फ्लावर से बाहर की ओर निकला रहेगा एंथर और स्टिग्मा दोनों। ऐसा क्यों?
फ्लावर के बाहर में एंकर रहेगा तो वो इजीली बर्स्ट करेगा, तो हवा में रिलीज हो जाएगा। और जो स्टिग्मा है ना वो भी बाहर की ओर निकला हुआ रहता है ताकि हवा में जो पॉलन ग्रेन है उसको ट्रैप कर सकते हैं। तुम लोग डस्टी इन्वायरमेंट में जाने पे नोटिस किया होगी तुम्हारे बाल में बहुत ज्यादा डस्ट कैप्चर हो जाता है। तो जो एनेमोफिली केस में खासकर मेज में जो स्टिग्मा होता है वो काफी फेदरी होता है। मक्के को तुम लोग खोलते होगे तो अंदर से ब्राउनिश पतला जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो स्टिग्मा ही होता है। तो वो हेयर लाइक होता है तो उससे क्या हो रहा है कि उसमें पॉलन ग्रेन्स आके स्टिक हो जाते हैं, तो उससे पॉलन ग्रेन्स को कैप्चर करने में मदद मिलता है। दूसरा चीज, जो एनेमोफिली में जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइट नहीं होते, जैसे नॉर्मली जो इंसेक्ट पॉलिनेटर प्लांट है, मैरीगोल्ड, लोटस, रोज, ऐसे काफी ब्राइट कलर होते हैं, काफी ब्यूटीफुल होते हैं। तो एनेमोफिली में ब्यूटीफुल फ्लावर्स नहीं होते हैं, इनमें नेक्टर भी नहीं होगा, इनमें स्पेसिफिक सेंट भी नहीं होगा, वो जो प्लेजेंट ओडर होता है ना फ्लावर्स में, जिसको परफ्यूम जैसे परफ्यूम्स बनता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। तो ये नॉर्मली हो गया एनेमोफिली और हाइड्रोफिली। मेनली जो क्रॉस पॉलिनेशन है हम लोग को जानना है, उनमें एंटेमोफिली यानी कि इंसेक्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पर इंसेक्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे। अब ध्यान से देखना ये चीज कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई कैटेगरी ऑफ एनिमल्स अगर पॉलिनेट करता है तो वो बीज है। धीरे धीरे अर्थ पे जो हनी बी है या नॉर्मल बीज होती है उनका नंबर घटते जा रहा है, और अगर हनी बी का नंबर घट गया तो हनी बी तो खत्म होंगी ही अर्थ पे से, साथ साथ हजारों वेराइटी ऑफ प्लांट भी धरती पे से खत्म हो जाएंगे, यानी कि thousands of plants will go extinct. Why? क्योंकि bees are the most important pollinators on the planet. तो ये bees बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैरेक्टरिस्टिक ध्यान दें इनके। तो जो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उनकी कैरेक्टर्स दे रहे हैं। तो फ्लावर्स जनरली बड़े होते हैं। अगर नॉर्मली तुम देखो मकई का फ्लावर बहुत छोटा होता है, वो दिखता नहीं। मैंगो फ्लावर तुमको नहीं दिखता होगा जनरली,
तो वो बहुत छोटा होता है। तो ये जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो इनके फ्लावर्स काफी बड़े होते हैं। तुम लोटस को देख लो, रोज को देख लो, लिली को देख लो, तो ये ऑर्किड्स को देख लो, तो ये सारे फ्लावर्स बड़े होते हैं जनरली और ब्राइटली कलर्ड। तो यानी कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उसका जो पेटल होता है वो काफी ब्राइटली कलर्ड हो जाता है। एंड प्रोड्यूस ओडर एंड नेक्टर। फ्लावर से दो तरह का ओडर निकल सकता है, प्लेजेंट या बहुत ही ज्यादा फाउल स्मेलिंग। तो जो बटरफ्लाई या फिर हनी बी से पॉलिनेट होगा वो काफी प्लेजेंट ओडर, काफी परफ्यूम टाइप का ओडर रिलीज करेगा। लेकिन जो फ्लावर बीटल से या फिर हाउस फ्लाई से ऐसे इंसेक्ट से पॉलिनेट होगा वो बहुत ही गंदा स्मेल एमिट करेगा। लेकिन प्लेजेंट स्मेल हो या फाउल स्मेल हो, दोनों तो ओडर ही होता है। एंड दिस इज अदर थिंग दैट दे प्रोड्यूस इज नेक्टर। ये नेक्टर काफी स्वीट लिक्विड होता है। तो जो भी इंसेक्ट प्लांट में आता है वो उस नेक्टर को सक करता है। तो प्लांट जो फ्लावर है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीजें करता है। The other thing is कि अगर फ्लावर बहुत ज्यादा, उसका जो पेटल है वो बहुत बड़ा नहीं है, दिख नहीं रहा है ज्यादा, तो प्लांट्स में जो फ्लावर में जो अदर पार्ट है यानी दैट इज ब्रैक्ट हो गया या सेपल हो गया, तो ऐसी चीजें बड़ी हो जाएंगी और वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। और यहाँ पर एंकर एंड स्टिग्मा आर इंसर्टेड। अगर ध्यान हो एनेमोफिलस जो या फिर हाइड्रोफिलस, उसमें अभी जस्ट मैंने बताया था कि वहां पर जो फ्लावर्स होते हैं उनके एंथर और स्टिग्मा बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि एंथर बाहर की ओर निकला हुआ है तो बर्स्ट करेगा तो हवा में इजीली चला जाएगा। उसी तरह उसका जो स्टिग्मा था वो हवा में निकला हुआ था एक्सटर्नली, तो वो क्या होगा, पॉलन ग्रेन को कैप्चर करेगा। लेकिन यहाँ पे अंदर की ओर है, यानी कि अंदर की ओर वो धंसा हुआ है। ऐसा क्यों? तो इंसेक्ट आएगा तो अंदर नेक्टर तो अंदर है ना फ्लावर के बेस पर, तो वहां तक आने के लिए उसको अगर वो एंथर स्टिग्मा बाहर होगा तो पॉलन ग्रेन तो उस पर चिपकेगा ही नहीं। तो सिर्फ इंसेक्ट यहाँ पे अंदर तक आता है, इसीलिए एंथर और स्टिग्मा अंदर की ओर होता है, इंसर्टेड होता है, ना कि एक्सर्टेड। तो इससे क्या होगा कि जो एंथर या स्टिग्मा है वो इंसेक्ट के कांटेक्ट में आ जाएगा और इंसेक्ट के बॉडी सरफेस पे पॉलन ग्रेन लगा होता है, तो वो पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे गिर जाएगा। या फिर अगर नहीं लगा हुआ है तो एंथर पे जब टच करेगा इंसेक्ट तो एंथर पे पॉलन ग्रेन लग जाएगा, और जब वो बटरफ्लाई या फिर बी दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो उसके स्टिग्मा के जब कांटेक्ट में आएगा तो एंथर से जो वो पिकअप किया है पॉलन ग्रेन वो वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इंटेमोफिली इज द मेन पार्ट। एंड बर्ड्स के थ्रू जो होता है पॉलिनेशन को ऑर्निथोफिली कहते हैं। जनरली दो बर्ड यूज होते हैं, एक है हमिंग बर्ड और दूसरा है सनबर्ड। तो अफ्रीका वाले एरिया में या एशिया वाले पार्ट में जनरली सनबर्ड पॉलिनेशन करती है, और जो अमेरिका वाला एरिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या यूरोपियन एरिया, वैसे जगहों पे हमिंग बर्ड एक बहुत ही छोटा सा चिड़िया होता है। तो वो जो हमिंग बर्ड है वो अमेरिका वाले एरिया में पॉलिनेशन करता है, और अफ्रीका और एशिया वाले एरिया में जो सनबर्ड है वो पॉलिनेट करता है। तो hereby we complete pollination, and in the next class we will discuss the remaining part of fertilization and embryogenesis.